जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी मुझे एक भी चीज़ नहीं समझ आया। हाँ। और मैं वासन के साथ ही देख रहा था, वासन ने सोचा होगा यार ये कैसा डफर है, एक भी चीज़ नहीं पकड़ा इसने। क्योंकि मुझे तो बस खुद से मेरा लेना देना था कि मैंने कैसे काम किया है इसमें। मैं दो ही चीज़ करता हूँ अपने लाइफ पे, जब भी करता था कि मैंने बोला कि आई विल ओनली टेक लेडीज़ टू टॉक टू मी एंड ट्रोल्स। तो जब ट्रोल गाली देते हैं ना तो मैं उनको सीधा वीडियो रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कि आज आप मुझे मुंह पे गाली दे। एक बार एक ट्रोल था जो आ भी गया तो really? हाँ मैं, और वो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, ढूंढोगे तो मैंने उसका टाइम कोड भी रखा हुआ है जहाँ पे उसने आंसर किया है। तो उसने गाली दी थी, जैसे उसने वो आया वीडियो पे, उसने मुझे सर बुलाया। अच्छा अभी तो मुझे गाली दे रहा है, सर कहाँ से बन गया मैं भाई। तो लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी अनजाने इंसान के साथ बातें करता हूँ, मज़ा आता है। हाय दिस इज सिकंदर खेर एंड यू आर वाचिंग योर मिर्ची प्लस। सो इनकी फिल्म्स तो काफ़ी अनोखी रही है, कुछ चली कुछ नहीं चली, बट इनके OTT डेब्यू ने काफ़ी धमाल मचा रखा है। वेल आई वुड नॉट लाइक टू नेम हिम, लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वेलकमिंग हिम ऑन मिर्ची प्लस। हाय मैं हूँ सुष्मिता सेन। सो ये है सिकंदर खेर, जिसने आर्या के साथ में सबको चौंकाया है उनके रोल्स में, बट उसके अलावा उनका रीसेंट शो आया है जो बहुत फेमस है। इट्स नॉट अ शो, इट्स एक्चुअली अ फिल्म विच इज मोनिका ओ माई डार्लिंग। Yes. एंड पीपल आर loudly talking about it, extensively talking about it. Yes. How does that make you feel? It's great, yeah. I mean, we always do work so that, you know, people get entertained, people enjoy it, and I think that it's quite an entertaining film. I enjoyed watching it. So, usually when I'm in stuff, I find it tough to be able to gauge what kind of film it is because I'm too worried about seeing myself. But yeah, Monica Vasan is just superb, and to be honest, it's a fun film, yeah. And I'm so happy that people are enjoying it. So जब वासन बाला ने आपको रीच आउट किया था ये रोल के लिए, आपका यानी what thought you had in your mind? Did you like, were you okay? Were you satisfied with the role he was offering it to you? So we spoke on Zoom. I was in Indonesia. मैं उधर एक फिल्म का शूट कर रहा था उस समय. So then I said that sir please, he sent me the script. I asked him for 10 days because I was shooting an action sequence. और वापसी पे दुबई में लेओवर था मेरा 5 घंटे का. तो मैंने फ़ोन पे खोला, मैं बोला चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सीन है. हाँ. और जैसे मैंने फ़ोन पे खोला उसे, 1 घंटे में पूरा का पूरा फ़ोन पे ही पढ़ लिया स्क्रिप्ट. तो बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट थी. हाँ. और रोल तो मैं जानता था कि कैसा है और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है. तो अगर दोबारा मुझे ऑफर करे दोबारा यही करूँगा. पर Sikandar, you know, I really wanted to ask this question to you genuinely. Do you get excited with such, you know, maybe crime thriller or say thriller kind of things? Because I've seen, you know, over the years, you know, some of your films have been that way, you know, dark comedy or maybe, you know, dark in kind of, you know, आप जल्दी comedy नहीं करते हो या light-hearted film. It has to has, you know, action-oriented or thriller kind of. No, not really. Yeah. Huh. Actually, I've done a film called Tere Bin Laden Dead or Alive. That which was is crazy. completely funny. That So was completely funny. I've been lucky enough to do all kinds of genres. is thriller your पर personal? लोगों ने देखे नहीं है. But आप लोगों ने देखा हुआ है, जो चल चुके हैं, I think those must be more the ones that I've worked that are like that. But I've been very lucky to be able to do different genres till now. I think the only one I haven't tried till now is horror. तो अगर किसी के पास horror हो तो please याद कर लेना. I think Stree 2 है. अरे वाह, that's I'm dying to work with Amar Kaushik, and I saw Bhediya in fact yesterday, and I really enjoyed it. Well, he's a tremendous maker. So of course, like, you know, Amar Kaushik, if you're hearing this interview by any chance, Stree 2 के लिए आपको एक character मिल चुका है, literally मिल चुका है. But you know, working on this one, and इसमें ना कुछ there are certain scenes जो अलग-अलग zones में, you know, you can relate to it. You know, there have been, you know, conversations about it. And even Rajkumar Rao's character, even your own character, the way you plot and the way the things, you know, happen and all. I would not, you know, want to reveal things and all. But do you somewhere feel that, you know, that is a kind of cinema somewhere people are engaging onto or, you know, wanting to do? No, I think that if it's a good story, if it's I think anything that's interesting and fun, yeah, if it's a good story, if it's a good film, people will watch it. Yeah, it doesn't. The genre doesn't dictate the audience that's going in. I think if you can hold an audience and you're saying the story well, which can keep the audience engaged, I think किसी को भी फिर मजा आता है, आपको मजा आएगा देखने में. उस genre से क्या लेना देना. आप Instagram पे कभी-कभार live हो जाते हो and you are literally like कुछ समय हो गया नहीं हुआ हूँ. कुछ समय से नहीं हुए हो and you're quite fun on Instagram live. But what kind of comments do you know, like, you know, get quite entertained with while reading? सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरा Instagram लाइव देखा है. सॉरी कि आपको वो भुगतना पड़ा.
मैं यार मैं दो ही चीज़ करता हूँ अपने लाइफ पे, जब भी करता था कि मैंने बोला कि आई विल ओनली टेक लेडीज़ टू टॉक टू मी एंड ट्रोल्स। तो जब ट्रोल गाली देते हैं ना तो मैं उनको सीधा वीडियो रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कि आज आप मुझे मुंह पे गाली दे। एक बार एक ट्रोल था जो आ भी गया। वाह, तो really? हाँ, मैं, और वो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, ढूंढोगे तो मैंने उसका टाइम कोड भी रखा हुआ है जहाँ पे उसने आंसर किया है। तो उसने गाली दी थी, जैसे वो आया वीडियो पे, उसने मुझे सर बुलाया। आई सेड अभी तो मुझे गाली दे रहा है, सर कहाँ से बन गया मैं भाई। Okay. तो आई मीन दिस इज व्हाट इट इज। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, दे गिव अ लॉट ऑफ लव, दे हैव सो मेनी नाइस थिंग्स टू से। और मैं अपना टाइम पास करते रहता हूँ, गाने बजाता हूँ और नाचता हूँ बस। और क्या, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ कभी कभी, तो लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी अनजाने इंसान के साथ बातें करता हूँ, मजा आता है। पर अभी आपने और लॉकडाउन में बहुत हो रहा था क्योंकि घर पे ही बैठे लॉकडाउन में ऑफ कोर्स है, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं था, Correct, घर में correct. बैठना ही है, जिद थी एक टाइप के लिए, जी, करना ही है। पर आपने रिसेंटली विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन को, जब उन्होंने आपके परफॉर्मेंस को प्रेज मेरी किया, बहनें, उनको बहनें बोला वो है। है ना मेरी बहनें। बहनें क्यों? बस पता नहीं, हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जा रहा था। हाँ। बहनों की तरह। तो बहनें यानी। हाँ। पर आपका हम 3 बहन, हम तीनों बहन हैं। तीनों। हाँ। पर आपका सिर्फ थ्रेडिंग, हम थ्रेडिंग करने नहीं जाते। पर आपका इक्वेशन अभिषेक के साथ में काफी थिक रहा है, यू नो, ओवर द इयर्स यू गाइस हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन। Yes, yes. सो कैन आई से कि आपका इंडस्ट्री में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है वो अभिषेक बच्चन है? मेरा भाई है वो बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बुलाऊंगा, मेरा भाई है। उसको मैं, मतलब ही इज नोन मी सिंस ही सीन व्हेन आई वाज बोर्न। सो तब से वो बहुत ही अलग रिलेशनशिप है मेरा और अभिषेक का। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, आप दोनों के फादर्स साथ में आए हैं ऊंचाई में। डिड यू गेट टू सी दैट फिल्म? I haven't seen it yet. Yeah. So I'm looking forward to it. Monica Oh My Darling and Unchai released on the same day. और जौन से दिन रिलीज हुई उस दिन मेरा सर्जरी हो गया था अपेंडिक्स का। आप सोचो टाइमिंग क्या कमाल की थी। तो मेरी फिल्म रिलीज हुई और मेरा अपेंडिक्स भी रिलीज हुआ। Now I hope you are fine. I'm better. I'm much better now. Yeah. So now what's next for you? आप कौन से फिल्म्स कर रहे हैं? अभी एक फिल्म है मंकी मैन, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है जिसमें देव पटेल इज डायरेक्टिंग इट। इट्स हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। तो उसी फिल्म की जिक्र कर रहा था मैं, जो इंडोनेशिया में शूट कर रहा था उस समय जब। तो वो आएगी, वो नेटफ्लिक्स पे आएगी। एक और शो है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा। 2 फिल्में, एक नीरज पांडे जी के साथ है, एक और सिद्धार्थ और गरिमा जिन्होंने रामलीला लिखी थी, ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। और एक और शो चिड़िया उड़, बोलो चिड़िया उड़, बोलो चिड़िया उड़, जल्दी से बोलो। चिड़िया उड़। हाँ ओके, चिड़िया उड़ नहीं है, चिड़िया हो जाता चिड़िया उड़ MX प्लेयर पे आएगा, जिसमें मैं जगू दादा के साथ काम कर रहा हूँ, जैकी श्रॉफ के साथ काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये है। सिकंदर, आपको सबसे ज्यादा क्या कमेंट रिसीव हुआ है आपके फैंस की तरफ से? बस बहुत, जो भी कहते हैं अच्छी चीज़ कहते हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या आपको बताऊं। अच्छा यानी है। ऐसे बोलते कि आपकी हाइट बहुत है। अच्छा वो वैसे कमेंट्स। हाँ, लंबे हो, आवाज़ भारी है, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, उनको अच्छा लगता है। कभी कभी गाली भी दे देते हैं। अच्छा, पर नहीं, आपको लगता है कि ट्रोल से चलो एक जगह पे होता है, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इतना फिल्म्स को राइट नाउ ये ट्रोलिंग काफ़ी हो रहा है कि हर चीज़ में बॉयकॉट बॉलीवुड एक ट्रेंड चलते रहता है। आपको नहीं लगता कि ये दिस इज द बैड साइड ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, कि हर चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेच किया जाता है? हर एक कौन उसको भाव कौन देता है? मैं तो उसको, कुछ हुआ ही नहीं बॉयकॉट। उन लोगों को हैशटैग लगाते रहो हैशटैग, बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। दे आर नॉट गोइंग एंड ब्रेकिंग अ थिएटर, किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को आग नहीं लगा रहे हैं। लोगों की मर्जी है, हैशटैग लगाओ, बोलो बॉयकॉट। और उसमें अगर हम भाव, मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता भी नहीं है कि जो भी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे उन फिल्मों को कोई फ़र्क पड़ा। कुछ नहीं हुआ। बस हम ही पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे और हम ही उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इट्स फाइन या। एंड रही बात ट्रोल्स की, हम लोग बात ही कर रहे थे। मैं ज़्यादा, मेरे साथ इतना होता नहीं है, बट मैं इतना कुछ पढ़ चुका हूँ जो लोग, क्योंकि आप शायद से अब यू ट्राई टू आल्सो स्टे अवे, यू आर नॉट दैट ऑन सोशल मीडिया। नो, आई एम देयर, बट देयर आर सम वेरी बिग स्टार्स। उनका जो लेवल ट्रोलिंग का होता है, मैंने क्या, मतलब बहुत ही चीज़ें जो मैं पढ़ा हूँ कि लोगों ने क्या क्या लिखा है लोगों के बारे में। मतलब मुझे एक्चुअली उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो लोग ये सब चीज़ें लिखते हैं, कि कौन से दौर से गुजर रहे होंगे वो अपनी ज़िंदगी में, कि ऐसे उनकी सोच ऐसे निकले। मैं बस उनके लिए दिल से पीस मांगता हूँ कि यार तुम लोग बस ना पीस ढूंढो अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल टू टाइप स्टफ लाइक दैट। यू मस्ट बी इन अ वेरी डार्क प्लेस।
Your mom also praised your film. Yeah. You know, what was that compliment she gave it to you? Nothing. Yeah, I always go to my mother I always go to my mother to know to ask her what she felt, because मेरी माँ हमेशा मेरे साथ मुझे बहुत honest feedback देती है. बहुत सारी फिल्में जहाँ मेरी माँ ने कहा यार तुम्हारी वजह से फिल्म देखनी पड़ी, ये फिल्म अच्छी बिल्कुल मुझे नहीं लगी, तुम्हारा काम could have been better यहाँ पे वहाँ पे, बट मैं सुन लेता हूँ जो वो कह रही हैं. बट she enjoyed watching Monica, she enjoyed Arya, she liked my work. Of course I'm growing and I'm learning with everything that I do. So but उतना ही कहते हैं, बाकी सीखना मुझ पे छोड़ देते हैं. If there was one thing you had to change, about yourself or something in your life or some, say maybe incident in your life, what would that be? Nothing. Nothing. I wouldn't change anything because everything that I made, and I've thought of this. Yeah. ये तुरंत आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा. But ये सोच चुका हूँ क्योंकि I think that's what it is. I'm always thinking about life. I'm always thinking about myself and how to find peace. And I find peace with gratitude and kindness. कि भगवान से मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यार देखो मैं कहाँ पे पैदा हुआ हूँ. बहुत लकी हूँ इस देश में कि रेंट नहीं भरना है, खाने के वांदे नहीं पड़े मेरे, घर में रह सकता हूँ, छत है. तो all these other things, then I just try to find peace and kindness. जो लोग आपके साथ, people who can't answer back to you, जानवरों के साथ. I find peace in that, yeah. So, and I think that my journey and just the fact that I can think the way I am thinking right now, अंदर से, मैं बाहर नहीं बता रहा, but जहाँ पे मैं हूँ अपने दिमाग में, how my thought process is about life. I think my entire journey has got me here in my thought process. That is the most important thing, where I am. So all the mistakes that people might call mistakes, or I might think are mistakes, if they hadn't happened, I wouldn't be here. So I'm happy where I am. Well, before I let you go, I'm going to play this very small trivia. It's Okay. actually trivia. You have to answer this All because right. ये मोनिका ओ माय डार्लिंग को लेकर है. Okay. और उसमें आपको बताना है कि ये इंसिडेंट पे क्या हुआ था. Maybe it's not incident, maybe वहाँ के कुछ सीन्स है. So स्क्रीन प्ले जो है इस फिल्म का वो किससे इंस्पायर्ड है? Screenplay, मतलब it's based on a book. The That film comes later on, I think. मुझे नहीं पता किससे इंस्पायर्ड है, बताओ जवाब. श्रीराम राघवन's neo-noir action thrillers. अच्छा, okay. 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 ये अडेप्टेशन है एक जापानीज मूवी की. हाँ, नाम नहीं पता. नहीं, बुक, किताब की, नॉवल की. It's an adaptation of a novel. Okay, Yeah. जापानीज नॉवल. Yes. आपको पता है नाम? नहीं. Okay, it's Burutasro no Shinzo. The Japanese movie. But apparently it's a movie and it's directed by Yu Iri. Yeah, but it's I think it's based off a book which Sriram Raghavan has. I think he read. Okay, so Monica was supposed to meet Nishi in a place called Bates Motel. That's right. Okay, it's actually a tribute to. Psycho, Alfred Hitchcock. Okay, right. So accountant Arvind does a TikToker dash act while mocking overly complicated wine pouring by the robo. What is TikToker dash? TikToker जो रहते हैं उनका कोई एक एक्ट करता है वो. मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है. Okay, वो कैबी लेम का वो करता है, एक्ट करता है. अच्छा, कैबी लेम वो वाला है जो मतलब सब कुछ बहुत ही लोग जो इजी चीजों को बहुत मुश्किल तरीके से दिखाते हैं. yes. I have no idea. Sorry, मैं बहुत. That's okay. That's the reason it's trivia. Okay, I don't know. Sorry. ठीक है. So the name of the hotel where the conspiracy is hashed is called Prince Hamar. और इसका नाम प्रिंस अमर क्यों था? देवानंद का jewel thief के दो नाम ना. Yeah, tribute. They wanted to give that tribute to him. Okay. One of the scenes में राजकुमार राव एक टी-शर्ट पहनता है. Giant robot वाला टी-शर्ट ना. Yes. So उस पे चलो. बहुत टाइम हो चुका है फिल्म रिलीज हुए. Okay. और उसकी जो कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, जहाँ पे where he's working as an engineer, what is the name of the company? Unicorn. This is simple, I think. This much. My movie. Yeah, because no, but the earlier ones you didn't know थोड़ा. No, those things वो तो बहुत ही deep थे, Japanese वाले नाम वगैरह. So now the name of the van carrying the dead body wrapped in yellow plastic is. The name of the van. Yeah. मतलब वैन का नाम क्या है? वैन का नाम क्या है? मतलब वैन के मेक का नाम क्या है कि वैन पे लिखा क्या है? वैन का नाम जो है पता नहीं है. इनामदार मिल्स में तो था बट अभी पता नहीं कौन वैन का नाम क्या था. नासिर हुसैन. अच्छा, oh yeah, okay, yes, you're right, yes. And why is that name? That's because that's a direct tribute to Nasir Caravan, Sahib. no? हाँ, Karma.
Carvaan, no? Yeah, because it's ये related सब मुझे to... नहीं पता यार, मैंने नहीं देखी है ये So सब basically फिल्में। it's Caravan because Caravan का ही song है ना, करेक्ट Monica my darling. करेक्ट ये सब मुझे मेरा But still like मुझे बस मैं बस अपने आप को देखना चाहता हूँ यार स्क्रीन पे, ये सब चीजें कौन देखता But you है fairly यार? did well, I would say. You fairly did well. चलो थैंक गॉड यार, जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी मुझे एक भी चीज नहीं समझ आया। हाँ. और मैं वासन के साथ ही देख रहा था, वासन ने सोचा होगा यार ये कैसा डफर है, एक भी चीज नहीं पकड़ा इसने। क्योंकि मुझे तो बस खुद से मेरा लेना देना था कि मैंने कैसे काम किया इसमें। हाँ। So आपको कुछ तो समझा होगा ना इस फिल्म से, जो बहुत, जब दूसरी बार देखा थोड़ा फिर उसके बाद मैंने पढ़ा जो इतने सारे व्यूअर्स ने इस फिल्म को, फिर जाके देखा है कि वासन ने कितने सारे ईस्टर एग्स वगैरह क्या कहाँ पे। अरे यार एक ही रास्ता बचा है, आखिरी रास्ता, वो मेरा लाइन है। जब मैं बोल रहा था मुझे आइडिया नहीं था कि एक्चुअली आखिरी रास्ता की मैं बोल रहा हूँ, विच इज अगेन अ फिल्म विद Mr. Bachchan in it, yes. you know. So there's so many things, but that's because Vasan is such a movie buff and it's so beautiful the way he's incorporated. एक चीज मैंने पकड़ा कि वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का जो बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सारे डायरेक्टर्स हैं, and then you know people were like Anurag Kashyap का इसमें रोल है, and then Quentin people Tarantino, so then you get to know there are yeah. different names of the directors So and all. he's done like really cool things in it, you know. Like I mean पहले वाले सीन, मतलब one of the पहले वाला जहाँ पे वो बोलती है my cousin Vinny, बहुत ही कमाल की फिल्म है वो, जो आकांक्षा जो कैरेक्टर है वो राज से बोल रही है। तो the whole film is littered with these beautiful tributes to cinema, and I think that's really cool because it's hidden, वो फेक नहीं रहे place पे, you know, and how he's got it in. He's damn cool, yeah, Vasan's damn cool. Well, that's quite good to hear from you, and of course, you know, I'm sure a lot of people are going to watch this movie. Yeah. Thanks for your time, Thank for you. your lovely time, and all the Thank very you. best for your upcoming projects.